अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, गली क्रिकेट शो पे आप सबको खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट शायान वसीम और मेरे साथ हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट। वी हैव अनस रहमान and Furqan Siddiqui from Cricket with the Boys. So, in this episode, we would be discussing Karachi Kings. उनकी किस तरह एक squad उनका shape up हुआ है in this not too long ago in the PSL9 draft. We will discuss PSL8 performances for Karachi Kings and what kind of squad combination that they would require going into this tournament, starting in February. Karachi Kings की काफ़ी underwhelming performance थी in PSL8. They released Babar Azam, which was probably the big news that we had saw coming from PSL8. काफ़ी unnecessary rivalry start हो गई थी between Mohammad Amir and Babar Azam. Karachi Kings की बस एक combination click नहीं कर पाई. I think Imad Wasim was probably the only star performer Karachi had throughout the season. अब जो हम लोगों ने ड्राफ्ट को शेप अप हुए देखा था, उसमें उन्होंने इमाद वसीम को भी रिलीज कर दिया जो उनके स्टार परफॉर्मर थे। तो खैर चलते हैं हम लोग कराची किंग्स की डिस्कशन पे। हाउ डू यू रेट Karachi Kings PSL8 performance? Where do you think Karachi Kings lacked in PSL8? काफ़ी उनके स्टार परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं लगी थी। आई थिंक मैथ्यू वेड थे, मैथ्यू वेड की भी कोई इतनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं थी। हैदर अली को उन लोगों ने प्लेटिनम उठाया था और अब PSL9 में उन लोगों ने रिटेन नहीं किया। शोएब मलिक की भी एक अंडरवेलमिंग सीजन था, मोहम्मद आमिर का अंडरवेलमिंग सीजन था। So how do you rate Karachi Kings in PSL8? What were the areas do you think the Karachi Kings needs to improvise in this upcoming season? So thank you for the introduction first of all. And नहीं देखिए आप PSL8 को देखते हुए I think it was a very poor performance कराची किंग्स की तरफ से and like हर उसमें हर बैटिंग bowling and fielding हर तरीके से was very bad. And the only player, as you said, was Imad Wasim, and the other guy who played a bit, who I think started playing from the second or third match, was Tayyab Tahir, who was a pretty interesting player to watch. A bit on the older side, but a good introduction to the team. But उसका यही है, उसको भी हमने drop कर दिया. He's not in the team as well this season, so it's surprising. I think the strategy of Karachi Kings is जो अच्छा खेले उसको निकाल दो, is the idea. So it's a bit disappointing and surprising at the same time, because being a Karachi fan like since the PSL1, it's sad to see where we are going at the moment. Because I thought the first 5 seasons were good and then it's just downhill from there. मतलब last season की अगर मैं specifically बात करूँ तो मतलब हमने हर department में lack किया था, and the biggest thing I think was our bowling, जिसमें जो है the bowlers were not really clicking, and no one was clicking. Like mainly I would say our senior bowler at the time was Mohammad Amir, who I think just fell. I don't know what happened to him, but he just fell down the drain. So it was pretty bad from him. And then I don't think we had a good combination in the team. Again, same as this season, I would say. Karachi Kings selection affected itself. It wasn't anyone else, playing a role in it. It was the management or the team selection playing a part in just disappointing season. तो मुझे तो honestly यही लगता. That's how I would summarize the whole fiasco of last season for Karachi Kings, winning just one game. Although I was happy it was against Lahore. तो मतलब कुछ तो जीत गए थे. तो being a Karachi boy, it's something that you always look forward to. Going forward into the next season, something that we need to improve on, look for the best combination of the team within the first 3-4 games, so that you have the second half of the season to get back on track. Because good. I don't see a winning start here. That's it. फुरकान भाई, कराची ने काफ़ी हाई प्रोफाइल ट्रेड्स की फॉर दिस अपकमिंग सीजन। उन्होंने इमाद वसीम को जाने दिया, मोहम्मद आमिर को जाने दिया, उन्होंने मोहम्मद नवाज की ट्रेड करवाई टू कराची। उन्होंने शान मसूद को लिया। आई वाज सरप्राइज कि शान मसूद came to Karachi, and it looks like he will probably be there
कैप्टन एज वेल फॉर दिस सीजन। अंडर 19 के इमर्जिंग खिलाड़ी भी उन्होंने उठाए थे। तो द ड्राफ्ट इटसेल्फ दे हैव पिक्ड अच्छे, मतलब अच्छे खिलाड़ी उठाए उन्होंने। आई डोंट नो कि वो कराची में आके अच्छे खिलाड़ी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट इट लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट फॉर कराची ऑन पेपर एटलीस्ट। तो आपको क्या लगता है कि इनको इमाद वसीम को रिलीज करना एक एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा ऑप्शन था, गिवन के उनकी इंतजामिया में भी काफ़ी एक बड़ी चेंज आई है, हैदर अजहर का इंट्रोडक्शन हुआ है एज अ टीम मैनेजर, नए कोच आए हैं, एक तरीके से एक ओवरहॉल हुआ है पूरे कराची किंग्स के सेटअप का फॉर दिस अपकमिंग सीजन। तो हाउ डू यू सी दिस न्यू स्क्वाड शेपिंग अप, शान मसूद, एक सेंसिबल कैप्टनसी एक आया है, शायद एक सेंसिबल अप्रोच आए। क्या आपको क्या लगता है इस नई कराची किंग स्क्वाड का? बट आई फील कराची में काफ़ी चेंजेस हुई हैं। कराची किंग्स की चेंजेस फॉर देम आई थिंक इज़ गुड। एक हमारा इशू चल रहा था इमाद वसीम और बाबर और आमिर के हवाले से। आई थिंक पिछले सीजन में शायद कहीं उस सारी स्टोरी टेलिंग ने भी बड़ा अफेक्ट किया, तो उन्होंने उसके सारे फैक्टर्स को ही टीम से आउट कर दिया। हैदर अजहर का आना और फिर कोचिंग स्टाफ में चेंजेस आना, फिल सिमंस उनका हेड कोच आ गया, तो डेफिनेटली उससे भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड थी। और टीम अभी जो इन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया वो काफ़ी अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट किया मेरे हिसाब से। शान मसूद को पिक करने का मकसद उसको कैप्टन बनाना ही था, और कोई दूसरा रीज़न तो मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि जैसे ही उसको सेलेक्ट किया था उसके बाद ही सलमान इकबाल साहब की ट्वीट आ गई थी कि उसकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ और उसके हवाले से तो वो एक्सपेक्टेड था कि वो कैप्टन होगा। और टीम काफ़ी हद तक ऐसी लग रही है कि वो डिसाइडेड था कि यार ये कैप्टन यही बंदा बनेगा, और ऑलमोस्ट ये 11 होगी। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे महसूस हो रही हैं। चलिए आपने अंडर 19 से लड़के जो लिए हैं, साद बेग है, अरफात मिन्हास हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपने किरण पोलार्ड को लिया है, असिस्टेंट कोच टू इंग्लैंड इन 2024 वर्ल्ड कप। बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ से भी आपको। उसके अलावा भी खैर प्लेयर्स अच्छे हैं, टीम अच्छी है, एक नए अप्रोच के साथ आई थिंक ये जा रहे हैं। लेट्स होप कि इस दफ़ा जो है वो अच्छे रैंक कर सकें ये लोग। आई थिंक मैं भी इनका स्क्वाड पढ़ रहा था, उन्होंने एक्चुअली अनवर अली को भी उठाया है। अनवर अली का जो रोल है, इट्स गोइंग टू, आई थिंक उसको एज अ फिनिशर ही खिलाएंगे मोस्ट लाइकली। जो एक इमाद वसीम का जो रोल था, इमाद वसीम का जो फिनिशर के तौर पे जो रोल था, वो अनवर अली और मोहम्मद नवाज कंटिन्यू करेंगे। और मेरे लिए जो एक अच्छी पिक रही है, अच्छा उन्होंने एक जो स्टार्ट किया था, वो उन्होंने तबरेज शम्सी को, जो प्लैटिनम लेवल का प्लेयर है, उसको उन्होंने गोल्ड में रिटेन किया था। और आपके क्या कहते हैं, शान मसूद को इन लोगों ने डायमंड में उठाया। शान मसूद को डायमंड में उठाया, हसन अली को इन लोगों ने डायमंड में ट्रेड किया। तो एक उनकी एक थॉट प्रोसेस हम लोग को दिखी थी कि इन लोगों ने काफ़ी इस पे थोड़ी थॉट लगाई है, सोचा इस बारे में कि यार हमें कौन से प्लेयर कौन से कैटेगरी में फिट कराने हैं। अगर क्योंकि शान मसूद आई बिलीव वाज इन प्लैटिनम या डायमंड, आई बिलीव ही वाज अ प्लैटिनम लेवल रिटेंशन, और उसको उन्होंने डायमंड में लिया है। तो एक आप तो उन्होंने अपना प्लैटिनम एक तरीके से पूरा खाली कर दिया था, ट्रेड करके इमाद वसीम को ट्रेड किया उन्होंने। और हसन अली को जब इस्लामाबाद से लेकर आए तो उसको भी उन्होंने डायमंड में ही रखा, उसको प्लैटिनम में नहीं रखा, ताकि उनका पूरा ताकि वो नवाज को प्लैटिनम में लेकर आ सकें, और कारिन पोलार्ड और डैनियल सैम्स का उन लोगों का प्लैटिनम में इंट्रोडक्शन रहे। दैट वाज समथिंग रियली स्मार्ट ऑफ देम। हैदर अजहर से अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस, उनकी स्ट्रेटेजी जो भी बनाते हैं, वो उसमें थोड़ी सोच है जो नज़र आती है, एटलीस्ट जो हम लोगों को कराची से थोड़ी एक्सपेक्टेड नहीं थी। I think up until Dean Jones, Karachi was really doing really well. um, and until then, हसन अली का इंट्रोडक्शन कराची किंग्स में, मोहम्मद नवाज का इंट्रोडक्शन कराची किंग्स में, हसन अनस सॉरी मास, आप क्या कहते हैं कि how do you see मोहम्मद नवाज एंड हसन अलीज इंट्रोडक्शन? ऑब्वियसली उन लोग के लिए नई फ्रेंचाइज है। मोहम्मद नवाज 8 साल से क्वेटा से खेलते हुए आ रहे हैं। अब Hassan Ali, although Peshawar and Islamabad, but he was a pretty strong member of both teams.
How do you see their introduction? What kind of role do you see them play in Karachi? Or do you even see them walking into the 11 right away? How do you see these two additions to Karachi Kings? So I'd start with saying कि पहले तो Hassan Ali, since he like before he we started playing the ODI World Cup, I was like we had a discussion. तो उसमें मैंने ही बोला था he would be a good performer for Pakistan, and he turned out to be I think a better bowler for Pakistan out of all of them. Mm-hmm. So I think his introduction into the squad is really good, and Karachi के लिए he's a good pick. So he's for sure in the playing 11. Like you can't drop him at the moment at least. Mm-hmm. But on the other hand, not really a fan of Mohammad Nawaz. Although like I did meet him before he started his international career, like in 2014 or something. But not really a fan of him. So I didn't like when Karachi picked him. To be really honest, but Mm-hmm. I guess we'll see what happens this season. He's been a big PSL player, so disliking apart, let's hope he turns out to be good for Karachi. And again, he's an international Pakistani international player, so he's going to be in the team. Like his spot's confirmed. Mm-hmm. And you got him on I think platinum category, right? तो Yeah, मतलब platinum nine. Yep. he's yeah, so मतलब इतनी बड़ी कैटेगरी में उठाया तो मतलब खिलाएंगे तो फिर तो I think बिल्कुल. that's he's yeah, they're gonna justify why they got him. So yeah, I think yeah, and to be honest, I'm really looking forward to Hassan Ali playing because उसका अच्छा चल रहा है उसका क्या कहते हैं year last year उसका अच्छा गया था. So I'm hoping he continues his form and gets Karachi in the top four at least. So yeah. Yeah. फुरकान भाई, डैनियल सैम्स एक काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इतना नहीं खेला है. आई थिंक वो 2021 के वर्ल्ड कप की स्क्वाड में थे, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, बट आई डोंट थिंक कि उनको गेम्स मिले भी हैं कि नहीं मिले हैं. हाउ डू यू रेट डैनियल सैम्स इन कराची किंग्स? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं. तो एक कराची को उस लिहाज से तो काफ़ी बूस्ट मिला है, बट हाउ डू यू सी डैनियल सैम्स एडिशन? क्योंकि एक बात हम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए कि फॉरेन प्लेयर जो पाकिस्तान आते हैं उन लोग की परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे ही रहती है. बहुत कम ऐसे फॉरेन प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान में जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. आई थिंक शेन वॉटसन हो गए, जेसन रॉय हो गए, और एलेक्स हेल्स एंड राइली रूसो. इन 4 प्लेयर्स के अलावा मेरे मेरे दिमाग में कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता है फॉर इंटरनेशनल प्लेयर जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो. तो हाउ डू यू सी डैनियल सैम्स फर्स्ट? एक्चुअली उनका पहला पहला PSL होगा ये. तो हाउ डू यू सी डैनियल सैम्स इन कराची किंग्स स्क्वाड? एंड आपको क्या लगता है कि कराची किंग्स में डैनियल सैम का किस तरह फिट होना बनता है? यार आई थिंक डैनियल सैम का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फॉर मी कराची किंग्स में, क्योंकि ये बॉलिंग में लेफ्ट आर्म के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे और बैटिंग में भी ये इसको एज अ फिनिशर के तौर पे लेकर आएंगे, जो मुझे महसूस होता है. अगर ये नवाज के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली अनवर अली के साथ नहीं जाएंगे, जिसका चांसेस कम है. तो ऑब्वियसली डैनियल सैम्स को वहाँ पे रोल प्ले करना होगा अपना. बट इसका काफ़ी T20 एक्सपीरियंस है, बिग बैश लीग का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो हेल्प करेगा कराची किंग्स को. प्लेयर तो नीचे उनको चाहिए होंगे, तो आई होप कि फिनिशर भी अच्छा एक निकल आई है और एज अ बॉलर भी इसका इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि वही आप जो बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स उतने हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते. और प्लस आई थिंक इसे एशियन पिचेस पे आई डोंट रिमेंबर हिम प्लेइंग IPL, मुझे सही से याद नहीं, हम्म. तो आई कांट से अबाउट इट कितना अच्छा जाएगा. सही. अभी मैं अपना वो करेक्ट करता हूँ. मैंने अभी शुरू शुरू में कहा था कि शान मसूद डायमंड में थे, उनको कराची ने गोल्ड में रिटेन किया था. शान मसूद को गोल्ड में लिया, शोएब मलिक को उन लोगों ने गोल्ड में लिया, और तबरेज शमजी को उन लोगों ने गोल्ड में लिया. तो ये एक मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छी उन्होंने क्या कहते हैं, अच्छी उन्होंने एक रिटेंशंस की. मेरे एक प्लेयर जो आता है जो जिसने काफ़ी डोमेस्टिक खेली है,
और वो PSL में भी इस्लामाबाद का हिस्सा रहे हैं, मोहम्मद अखलाक. I believe he's probably the only wicket keeper that has been picked for Karachi Kings. I don't know if Yeah, I'm I right think on that, Tim but Seifert is the I other mean one. Tim Seifert as well. Yes, Tim Yeah. Seifert as well. He's also I would believe he was in Diamond. Yeah. I think Tim Seifert का availability का factor होगा. Mhm. If he fits into the if he does fit in, अब मुझे नहीं पता वो कितने games खेलेगा. बट मोहम्मद अखलाक का अगर थोड़ी सी मोहम्मद अखलाक में हम लोग बात करें, अ, उनकी ऐसी कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं है इन PSL. Maybe a 50 or two for Sahabad, but nothing significant that I thought कि यार कराची को ये उठाना चाहिए. I was more interested in either कोई लोकल लड़का हो, जैसे कि एक मुल्तान से एक खेला था जिशान, जी. लेफ्ट हैंड ओपनर था. आई वाज रियली होपिंग कि वो उसको उस जैसा प्लेयर उठाएं जिसका जिसका थोड़ा एक फ्लेयर हो. तो हाउ डू यू रेट मोहम्मद इखलाक? जो भी मेरे मेरे लिहाज से इसकी पिक मुझे समझ नहीं आई इसको क्यों लिया गया. ऑल्दो सिल्वर में उठाया है इसको, आई एम श्योर उसकी परफॉर्मेंसेज उन लोग के लिहाज से मुनासिब होंगी. बट अनस, आपको क्या लगता है मोहम्मद इखलाक का बनता था पिक होना इस इसमें? Um, like I don't think मतलब उसकी previous मतलब PSLs देखते हुए, और I haven't really followed him in domestic to be really honest, but PSLs देखते हुए I don't think he was suited for PSL, to be honest, not just the team. हम्म. तो it's I think it was just a filler position kind of, उसको उठा लिया मुझे लगता है. मैं हम्म. पर्सनली प्रेफर करता है जो उन्होंने सप्लीमेंट्री में सात बेग को जैसे लिया है, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड हिम टू बी इन द टीम, इन द स्क्वाड, मेन स्क्वाड, हम्म. because he is Pakistan under 19 का captain and he plays one down, wicket keeping भी करता है. तो हम्म. I would have preferred him personally. हम्म. But yes, Mohammad Ikhlaq ka I don't see how that's gonna help Pakistan. Apart from obviously covering up for Tim Seifert when he's not available. So again, वही filling position की तौर पे खिलाएंगे मुझे लगता है बस. I don't see any performances uh, या past that वैसे stage. अभी मैं देख रहा हूँ टिम मोहम्मद अखलाक की रीसेंट T20 परफॉर्मेंसेस. उनकी पिछली 10 इनिंग्स में उनकी आई थिंक एक एक स्कोर है 44 नॉट आउट का. उसके अलावा उनकी Hmm. ज़्यादातर जितनी भी इनिंग्स हैं, it has been underwhelming. Or I Hmm. believe he was opening for Lahore Whites in the recent T20 tournament, in domestic T20 tournament. और एक और लड़का है जो लास्ट ईयर आई थिंक ही वाज एन इमर्जिंग, इरफान खान न्याजी. वो मुझे बड़ा उस लड़के ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था. उसकी हिटिंग एबिलिटीज, उसकी वो बहुत बहुत चीता फील्डर है वो. ग्राउंड में बहुत Yeah. तेज, मतलब उसका ग्राउंड कवरेज उसकी बहुत तेज है. कैचिंग उसकी काफ़ी मुनासिब है. तो फरकान भाई, आपको क्या लगता है? मेरे लिहाज से अगर देखें तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा ऊपर खेले. और उसका पोटेंशियल ऐसा है कि वो ऊपर बैटिंग कर सकता है और तेज़ बैटिंग कर सकता है, हिटें लगा सकता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कराची वाले उसको उस पोटेंशियल पे उसको लेके जाएंगे. बट हाउ डू यू सी इरफान खान नियाजी so far in PSL 8 and in the upcoming PSL? यार इरफान खान नियादी ने लास्ट ईयर तो काफ़ी इम्प्रेस किया था, टू बी ऑनेस्ट. मतलब अच्छी बैट परफॉर्मेंस विद द बैट और बॉल एक नज़र आई थी. फील्डर तो डेफिनेटली अच्छा है वो. बट अभी जिस हम्म. तरह इन्होंने स्टार स्टडेड टीम बनाई है ना, अपना ड्राफ्ट जो किया है, तो ऊपर टॉप 6 में तो ये कहीं नज़र नहीं आ रहा बेचारा. अब नीचे 5 में इसको कहीं पे एडजस्ट करना, तो हम्म. मुझे नहीं लगता ये हर मैच खेलेगा. मे बी वो जैसे कहते हैं ना स्क्वाड रोटेशन, हम्म. उसमें आएगा ये कहीं पे. मैच खेलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन जो मैच भी फिर ये खेलेगा उसमें अपना मार्क जरूर सही. साथ साथ कासिम अकरम का एक, I Yeah. was really surprised that they had let go of कासिम अकरम. हालांकि उसने PSL 8 में अच्छा, सॉरी PSL 7 में अच्छा परफॉर्म किया था. PSL 8 में आई एम नॉट सो श्योर कि उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी. आमिर यामीन का रिलीज़ होना, इट वाज आल्सो समथिंग रियली सरप्राइजिंग.
कि उन्होंने एक उसको जाने दिया। मेरे लिहाज से कराची ने बेसिकली एक तरीके से दे रियली जस्ट revamped their entire team. इमाद वसीम और आमिर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर अब नहीं रहा जो जिसने शुरू से खेलता हुआ आया, तो न किसी ने भी एक तरीके से कराची से भी उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है जो भी अभी टीम में आया है। तो इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग कि उन्होंने कासिम अकरम जो इमर्जिंग कैटेगरी में था, 2 साल वो इमर्जिंग में खेला और अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको रिलीज कर देना, दैट वाज मतलब इट डिडंट साउंड ओके। क्योंकि मेरा मेरा जो मानना है कि अगर आप किसी इमर्जिंग प्लेयर को उठाते हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि यार आप उसको डेवलप करें, थोड़ा उसको कैरी उसको लेके चलें। बट फॉर सम रीजन कराची डिड नॉट डू दैट। मेरे आप लोग की नज़र में जो स्क्वाड उन्होंने पिक किया है, आप लोग की नज़र में कौन ऐसा स्टार परफॉर्मर है दैट यू एक्सपेक्टिंग कि यार ये कराची का एक्स फैक्टर है? इफ कराची फाइनल तक पहुंचता है ना तो वो इसी प्लेयर की वजह से पहुंचेगा, वरना कोई चांस लगता नहीं है। तो तो माज आप बताएं, which player do you see in this current squad that Karachi has is going to have the X factor? Okay, so because I've seen him play international and what else, I would say James Vince, hoping that he's available during the PSL. So I Mm-hmm. would say James Vince is one player that you can really count on. And if he's in form, he's gonna be very, very hard to stop. So that's one player I would say we have to look out for. या जेम्स विंस की परफॉर्मेंसेस भी हैं पाकिस्तान में। उन्होंने मुल्तान के लिए उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। कोयटा के Hmm. लिए वो हिट एंड मिस रहे थे, बट Yeah. कराची के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस हैं थोड़ी बहुत। आई बिलीव ही स्कोर्ड आई थिंक 2 or 3 50s लास्ट सीजन एज वेल। अनफॉर्चुनेटली वो कैरी नहीं कर सके उस फॉर्म को थ्रू आउट द इनिंग्स, बट या you're right, जेम्स विंस इज समवन टू लुक आउट फॉर। फुरकान भाई आप बताएं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कराची के स्क्वाड में? यार मुझे टू बी ऑनेस्ट इनका स्क्वाड देख के ऐसा कोई लगता नहीं कि कोई एक प्लेयर है जिसपे फोकस बड़ा होगा कि यार यार ये प्लेयर अच्छा खेलेगा तो ये तरह आगे जा सकता है। इस साल इनका ज़्यादा जो है ना वो टीम वर्क के ऊपर है। मुझे लगता है इस साल इनका टीम वर्क वाला है कि इनकी टीम क्लिक करेगी प्रॉपर तो ठीक है। कोई एक आध प्लेयर मुझे नज़र नहीं आता कि वो परफॉर्म करके बहुत टॉप क्लास निकल जाएंगे। मैं इस साल कराची की टीम में इस तरह का कोई प्लेयर देख नहीं रहा। बट एज अ टीम मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जिसको एक्स फैक्टर के तौर पे रखूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इधर। ये आपने सही बात बोली, क्योंकि इस पूरी टीम में सिवाय कैरन पोलार्ड को अगर आप हटा देना तो इस पूरी टीम में पोलार्ड के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी एक आप कह सकते हैं कि यार वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। Hmm. जितने भी खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक हो गए, दे हैवंट रियली गिवन दोस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट, और उनसे अभी ऐसी उम्मीद लगा भी नहीं सकते। सो अभी पोलार्ड को अगर आप साइड में कर दें तो पूरी टीम ऐसी है कि वो टीम परफॉर्मेंस पे ही चलेगी या इंडिविजुअल ब्रिलियंस वंस इन अ वाइल, वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स टाइप चीज़ चलेगी तो चलेगी। और बट एक चीज़ हम लोग को अप्रिशिएट करनी चाहिए कराची के बारे में कि आई थिंक उन्होंने एक सेंसिबल अप्रोच ली है कि यार आप जो जो आपकी जो पुरानी जितनी भी गन थी ना, जो आपके जितना भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है आखिर, वो आपने एक तरीके से साइड में करके आपने बोला कि भाई अब हमने एक नया नया पर्चा निकालना है, नए पर्चे पे जो लिखाई होगी वो चलेगी अब। तो इट्स समथिंग रिफ्रेशिंग टू सी एज अ कराची फैन। like last season, यार I cannot explain कि यार I was how frustrated I was to see Karachi lose winning games, जीते जिताए गेम्स ये लोग हारे हैं। जो आई बिलीव मुझे एक कोयटा का गेम मुझे याद आता है जिसमें कोयटा इरफान न्याजी बैटिंग कर रहे थे शोएब मलिक के साथ आई बिलीव, और उन्होंने आखिरी 3 ओवर में उनको शायद 40 रन चाहिए थे, ऐसे कुछ चाहिए थे यार, दे वर प्लेइंग Hmm. डॉट बॉल्स एंड आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड यार कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग। बट I hope ke we don't get to see this kind of a thing in this season because being from Karachi and you guys also are from Karachi, हम लोग को एक लॉयल्टी तो लगती है, हालांकि कि यार आप सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, बट आप लोग को एक लॉयल्टी लगती है कि कराची को जीतना ज़रूरी है
I think Karachi is probably the only team in the PSL. अब तो खैर खास तौर पे, क्योंकि अब तो लाहौर भी 2 दफा जीत चुका है। वरना आई थॉट क्या है, चलो लाहौर बड़ा गंदा परफॉर्म करता है, कराची वालों की थोड़ी ना अच्छी अगर रहती है। तो अब तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल। I really hope that Karachi really performs. This is a very good approach that Haider Azhar has implemented. Uh, मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हैदर अजहर के बारे में। उनकी जो अप्रोच है, शान मसूद अब कप्तान है, फिल सिमंस का एक 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 क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एक इस तरह का जो चेंज आया है, जो एक आप कह सकते हैं ना, जो क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, समथिंग दैट समथिंग दैट्स मोर traditional, a traditional approach. I think that's probably the best way to describe this. एक कि यार आपने एक स्ट्रेटेजी लेके चलना है, उस स्ट्रेटेजी पे अगर आप कायम रहे तो आपको जीत हासिल होगी। तो आपको क्या लगता है कि हैदर अजहर का जो कॉम्बिनेशन है, शान मसूद एंड फिल सिमंस, ये कितना फायदेमंद आपको लगता है एज कम्पेयर टू व्हाट वी सॉ विद हर्षल गिब्स एंड इमाद वसीम एंड वसीम अकरम? तो फुरकान भाई आप बताएं, देन माज आई कम टू यू। कंक्लूजन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। मैं कराची किंग्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई ऐसी हायरिंग वो लोग करेंगे। क्योंकि अभी तक लगता था कि स्क्वाड सिलेक्शन जो है ना, वो एक बॉक्स रखा होता है, उसमें से पर्ची निकालते हैं कि हाँ यार आ जाओ भाई, तुम टीम में आ जाओ। इस तरह से कुछ चल रहा था ऐसा। बट यार ये अच्छी अप्रोच है टू बी ऑनेस्ट। आप एक हैदर अजहर का बड़ा एक रोल है, प्रीवियस भी अपनी टीम के साथ वो रहे हैं। स्क्वाड सिलेक्शन किस तरह से होनी है, किस तरह से उसको तरतीब देना है, डेटा के ऊपर काम हो रहा होता है। तो आज के क्रिकेट के दौर में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस वो मीडिया टॉक्स को हैंडल भी कर लेते हैं अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड रोल होता है उनका। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होपफुली उनका रहेगा, जो हमें स्क्वाड में और कोचिंग चेंजेस में नज़र आया है। होपफुली आगे मैचेस में भी हम कुछ देखेंगे टीम परफॉर्मेंस में फ़र्क उनकी इंक्लूजन की वजह से। मास आप बताएं, how do you see this new coaching setup for Karachi Kings shaping up? नहीं, I think I agree with Aya on this, on his points. आई डू थिंक हाँ, ये चेंज वही जो जैसी बात हो रही थी हमारी, तो ओवरऑल जो है पूरी टीम का, आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी के सारे द कोच एंड द कैप्टन, if they do gel this season, and they both are on the same page with the strategy that the management has. So that, I think that will decide for us how it really how effective it really is, the change really is. So I think, but looking from the outside right now, it looks like a good change. Okay, sounds good. और एक और factor that we have to look into for Karachi is that they don't have Imran Tahir this year. They have Tabriz Shamsi, who is probably their only wicket-taking, like threatening wicket-taking option in Pakistan. Shamsi की I believe availability का issue शायद होगा. I believe South Africa की T20 series है बीच में. But I believe कि तब्रेज़ शम्सी का एक तब्रेज़ शम्सी की participation is going to be a really big factor for Karachi. अब इमाद वसीम नहीं है, इमरान ताहिर नहीं है, नवाज का इस फॉर्म थोड़ा इफ़ी है। आप लोग की नज़र में कौन बॉलर आता है, लाइक विद रिगार्ड्स टू कराची's बॉलिंग लाइनअप? जो भी स्केड्यूल की जो बातें चल रही हैं, कराची इज़ गोइंग टू प्ले मेजॉरिटी ऑफ देयर गेम्स इन कराची, जहाँ पे बॉल इतना कुछ करता नहीं है, काफ़ी फ्लैट डेक बना होता है कराची में। मुल्तान में या लाहौर में थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाता है, बट कराची में सीधा सीधा बॉल आता है। तो हाउ डू यू सी कराची's like bowling lineup shaping up for this season? Okay, so I think we are going with the standard. I would say three pacer and two spinner, जिसमें all-rounder obviously with Mohammad Nawaz as said वो तो होगा. Hmm. And pace में अगर मैं specifically बोलूँ तो I would like to see Arfat Minhas. No, sorry, Mir Hamza.
Mir Hamza, yeah. I would like to see Mir Hamza in our pace attack because I really like his bowling. बड़ा दिमाग से करता है वो bowling अपनी and batsman को देखते हुए सामने किस तरीके से batsman react कर रहा है तो I would like to see him perform really well. But I think pace attack जो हमारा shape up करेगा would be Mir Hamza, Hassan Ali, and I think अगर आप प्रॉपर फुल ऑन पेस पे जाएंगे तो अनवर अली वरना अगर आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो डैनियल सैम्स वुड बी द थर्ड पेसर फॉर यू एंड स्पिन में ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज इज प्लेइंग यू माइट गिव अ फ्यू ओवर्स टू शोएब मलिक who I don't think is Mm-hmm. going to be effective at all Mm-hmm. but you're going to give it to him at least 2 overs तो Mm-hmm. I think yeah and अरफात मिनहाज का जो मैंने मेंशन किया था पहले तो he is a spinner so it would be interesting to see if he is given a chance because he's a good under 19 player. So I'm hoping he's given a chance and he shows he performs well. जैसे आपने कहा तब्रेज़ शम्सी might not be there, so he could fill Mm-hmm. in for him. Mm-hmm. So yeah, सही I see that happening. सही और फुरकान भाई क्या कहते हैं we have Karen Pollard, Daniel Sams, Tabriz Shamsi, Tim Seifert, James Vince, Jamie Overton, um, जो I think इनके सप्लीमेंट्री पे six क्या होगा Lee. supplementary Mm, pick है mm. but overall total of six international players जिसमें से I believe से आप मैक्सिमम 4 खिला सकते हैं जो I believe कराची पूरे के पूरे 4 खिलाएगा आपको क्या लगता है कि इन लोग का ओपनिंग कॉम्बिनेशन आई बिलीव शान मसूद ओपन करेगा आई डोंट सी शान मसूद प्लेइंग एनी अदर पोजीशन देन ओपनिंग डू यू थिंक कि वो लोग जेम्स विंस के साथ ओपन कराएंगे या टीम साइफर्ट के साथ ओपन कराएंगे आपको टॉप 4 कराची का किस तरह लग रहा है किस तरह शेप अप करेगा यार आई थिंक मुझे लगता है कि शान मसूद यहाँ भी वन डाउन खेलेगा जेम्स विंस और मोहम्मद अखलाक को ओपन कराएंगे अगर मोहम्मद अखलाक को एज ए कीपर खिला रहे हैं अगर सात भी खेलता है तो फिर उसकी पोजीशन का मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसको तो वो फिर कहीं मोल्ड करेंगे ना या तो ऊपर खिला लेंगे या चौथे नंबर पे खिला लेंगे Mm. लेकिन मुझे लगता है कि अखलाक को और जेम्स विंस को ये ओपन करा देंगे शान मसूद वन डाउन आएगा और सेकंड डाउन पे इनके पास शुएब मलिक है टॉप 4 तो ये है फिर बीच में पोलार्ड आ गया नवाज आ गया तो आपकी बचा क्या नज़र में इनके पास टीम साइफर्ट की जगह नहीं बनती है फिर यार आई थिंक भाई ये टिम साइफर्ट को नहीं खिलाएंगे क्योंकि अगर हम वैसे भी देखने जाएं तो किरण पोलार्ड डैनियल सैम्स क्योंकि बॉलिंग में इनको चाहिए होगी बॉलिंग में प्रॉब्लम होगी बॉलिंग इनके भी पास चाहिए होगी क्या राइट तो पोलार्ड डैनियल सैम्स और अगर शम्सी अवेलेबल है तो शम्सी और उसके बाद हमारे पास कौन बच गया Vince. एक इंटरनेशनल प्लेयर बचता है तब भी खिला लेंगे हाँ किसी को भी फिर वेंस है ऊपर विंस है आई बिलीव विंस तो आई थिंक विंस तो पूरा का ही वॉक्स इनटू द 11 वो विंस तो का तो खेल रहा कोई है हाँ वो खेलेगा पोलार्ड भी खेलेगा तो ये पोलार्ड विंस पोलार्ड एंड शम्सी आई बिलीव दे इफ ये शम्सी तो इज है अवेलेबल तो ये तीन तो पक्के पक्के खेलेंगे डैनियल सैम्स ही मुझे लगता है ये खेलेगा क्योंकि नीचे इनको चाहिए होगा प्लेयर लाजमी तौर पर फिनिशर के तौर पे ये कि अनवर अली को लेके गए ना अभी तो अनवर हाँ अली के अनवर साथ अली इनको और एक प्लेयर चाहिए नवाज होगा यार नवाज और देखें अनवर शायन भाई इतने अच्छे डायमंड्स के ऊपर ऐसा अजीब सा प्लेटिनम बिठाया हुआ है यार कसम से समझ नहीं आ रही मुझे नहीं नवाज का आई 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 नवाज का आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट क्वेटा we Quetta पे भी we will do a session on Quetta as well and discuss their signings and what they have done. But Nawaz का एक थोड़ा surprising factor था. Nawaz का trade was out of the blue. I did not see it coming. ट्रेड क्या मतलब ड्राफ्ट में जाना उसका रिलीज होना क्वेटा से that was something really surprising to me. But आई थिंक आपने बोला अखलाक से ओपन कराना दैट्स मेरे लिए नई बात थी क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि ये लोग जेम्स विंस और जेम्स विंस और शान मसूद से ओपन कराएंगे क्योंकि इन लोग ये जेम्स विंस और शान मसूद ने मुल्तान के लिए भी ओपन की थी तो आई दैट वाज माय थॉट प्रोसेस कि आई थिंक इन लोग का जो सक्सेस टेम्पलेट है ना वो यही होगा जो मुल्तान में चला था क्योंकि मे बी हैदर अजहर आए मुल्तान से हैं
शान मसूद भी मुल्तान से ही आ रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो ये विनिंग टेम्पलेट ये लोग चाहेंगे कि कराची में इम्प्लीमेंट हो, वो मुल्तान से लेकर आएंगे. जेम्स विंस एंड शान मसूद विल प्रोबेबली ओपन, और कैरन पोलार्ड एंड कैरन पोलार्ड एंड क्या कहते हैं, अनवर अली में से कोई फिनिशर के तौर पे जाएगा. अ, लेकिन हम लोगों ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस नहीं की है कि इमर्जिंग खिलाड़ी कौन होगा. आप मिनिमम 2 खिला सकते हैं, और जो कराची के पास जो ऑप्शन है वो सात बेग का ऑप्शन है. सॉरी, ना सात बेग, सॉरी, सिराजुद्दीन और इरफान खान नियाजी. सिराजुद्दीन मैंने उसको उतना अभी देखा नहीं है. आई डोंट नो उसकी क्या, वो व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल. बट मेरे लिहाज से इरफान खान नियाजी अगर आ रहा है एज एन इमर्जिंग, तो वो भी फिनिशर ही है. वो भी फिनिशर के तौर पे खेलेगा, तो वो आप उसको कहाँ फिट करेंगे. तो दैट इज अ हेडेक दैट शान मसूद हैज टू अंडरस्टैंड. अगर वो इरफान खान नियाजी को खिला रहे हैं, तो फिर अनवर अली का खेलना नहीं बनता, फिर नवाज का भी खेलना एक तरीके से नहीं बनता, अनलेस के वो सिर्फ सिर्फ स्पिन पे खेले. तो क्या कहते हैं आप, इमर्जिंग में इरफान खान न्याजी का आप लोग को दिखता आ रहा है, या सिराजुद्दीन का इंक्लूजन बनेगा? आई थिंक सिराजुद्दीन, मुझे उनका रोल बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो करते क्या हैं. I think he's a medium pace. मीडियम पेसर है. अच्छा. I think हाँ, इरफान खान न्याजी is the player to go for, and already कराची के साथ खेला हुआ है उसने last season, तो I हम्म. think he would be the right pick for them. आइडिया है उसका थोड़ा बहुत, तो I think उसी को comfortable zone में रहते हुए I think they're gonna pick him. हम्म. Because I think एक emerging compulsory होता है ना खिलाना. हाँ, मिनिमम वन. मिनिमम हाँ, वन. तो वो exactly, तो he's gonna be playing then. You're not leaving him out. एंड कराची के साथ भी वही मसला है जो बीच में पाकिस्तान के साथ मसला हो रहा था. पाकिस्तान बहुत सारे कीपर्स लेके चले जाता था, ये लोग बहुत सारे फिनिशर्स लेके चले गए हैं एक साथ. तो या. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हैं विद फॉर शान मसूद टू सी हु ही पिक्स. हम्म. बट या, क्योंकि फिर आप पोलार्ड को जल्दी नहीं भेज सकते. पोलार्ड की बैटिंग आइडियली उस वक्त आनी चाहिए जब 15वां ओवर चल रहा हो या 16वां ओवर चल रहा हो. देन पोलार्ड कैन रियली गो एंड जस्ट बी ऑफ. और या, अनवर अली का भी यही सीन है. वो लोग लंबी इनिंग्स खेलने के कायल नहीं है, और उन लोग से लंबी इनिंग्स ऐसे खेली भी नहीं जाती. तो तो चलें, इस बात पे हम एग्री कर सकते हैं. बट अरफात मिन्हास, सॉरी, नॉट अरफात मिन्हास, मोहम्मद आमिर खान, दैट्स अ न्यू नेम फॉर अ लॉट ऑफ अस. सिल्वर में उठे हैं वो. और आप लोगों को आप लोगों को क्या लगता है उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी? डू यू थिंक उनको एक दो गेम मिलेंगे? फ्रैंकली आई डोंट नो हु व्हाट ही डज, उनका क्या रोल बनता है टीम में. बट आई फील लाइक ये जो लोकल खिलाड़ी जो उठे हैं कराची से, जो जिनको कोई नहीं जानता, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, आई बिलीव कि ये लोग दे वॉन्ट really be getting much of an exposure for this tournament. फुरकान में आप क्या कहते हैं? यार अगर मैं शान मसूद अप्रोच से बात करूँ ना, तो आई थिंक चांस तो सबको मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या डिसीजन आता है. क्योंकि इसकी टीम में हमने ये देखा है कि ये प्लेयर्स को रोटेट करता रहता है. इसकी कोशिश होती है कि प्लेयर्स रोटेट होते रहें सेम कॉम्बिनेशन के साथ. बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता ये, और पिच को हम्म. बड़ा सिचुएशन असेस करके करता है. तो आमिर खान जो है वो भी मीडियम पेसर ही है, बॉलर है. तो हो सकता है कि उसको भी कहीं एक आध बीच में मैचेस में चांस दें. ऑप्शन तो सबको ही मिलेगा खेलने का इनके कराची के स्क्वाड में. लेकिन ये है कि हाँ, कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलती है ये डिपेंड करता है. एक मैच, दो मैच, तीन मैच, इस तरह से चलेगा. क्योंकि फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स तो अवेलेबल इनके ऑलमोस्ट सारे ही हैं. एक दो के हम्म. अलावा वो जेमी ओवर्टन आ जाएगा या इस तरह से, तो एडजस्ट हो जाएंगे. अभी इनका मेन फोकस वैसे तो इस सीज़न में यही होगा कि हमें टॉप 4 में फिनिश करना है. हम्म. मेन गोल तो ये होगा पिछली दफ़ा की परफॉर्मेंस के बाद से. तो ये अपने बेस्ट 11 के साथ ही चलेंगे.
उसमें अगर कहीं ऑप्शन नज़र आया तो शायद ये इन लड़कों को लेके एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन फिर तब भी मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में इसको चांस मिलता रहेगा। हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट गेम्स में भी चांस मिले लड़कों नए लड़कों। डिपेंड करता है शुरू में जो कॉम्बिनेशन ये लेके चलेंगे वो कैसे चलता है। वो क्लिक कर गया तो हो सकता है वही चलता रहे और किसी को ऐसी एंट्री ना मिले। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो फिर हो सकता है ये चेंज करें। जी, आई थिंक शुरू के 3-4 गेम बहुत सारी टीमों का यही होगा कि वो अपनी कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे, कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट फिट होती है। बट इसी के साथ आई बिलीव हम लोगों ने जितना कराची के बारे में कवर करना था हम लोगों ने कर लिया। कराची किंग्स का जो स्क्वाड है, इट लुक्स वेरी फॉर्मिडेबल ऑन पेपर. Maybe one or two questionable selections, as Maz and Furkan Bhai has mentioned. But overall, on paper, Karachi Kings looks a very strong team for PSL9. They have a new captain to lead that will lead them. They have a new support system and a new support staff and coaching staff that will be helping them throughout the tournament as well. Some new faces around, like Tim Seifert and Daniel Sams in the PSL overall. So exciting times ahead for Karachi Kings. Or if you guys have not subscribed to our channel yet, please go ahead and like and subscribe. Please take a please take some time out and check out Cricket with the Boys. उनका channel आप check out करें. They are also on YouTube, giving their cricketing insights on Pakistan cricket and cricket in general. आज तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आप लोग से फिर मुलाकात होगी. अब तक के लिए अल्लाह हाफिज.